آپریشن بنیان مرصوص بھارت کے خلاف تاریخی فتح پر ملک بھر میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ عوام اور افواج پاکستان کو بھرپور انداز میں خراج تحسین۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ہوا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی پرچم کو خصوصی سلامی دی۔ مرکزی تقریب آج رات پاکستان مانیومنٹ اسلام آباد میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف مہمان خصوصی ہوں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہ بھی تقریب کا حصہ ہوں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد۔ صدر مملکت نے عثمان یوسف کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کی۔ صدر مملکت نے شہید کی وطن کے لیے خدمات پر قوم کی جانب سے خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ ہمیں اپنے بہادر جوانوں کی قربانیوں پر فخر ہے۔ مادر وطن کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے چٹان کی مانند ڈٹے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آرمی چیف کے ہمراہ CMH راولپنڈی کا دورہ۔ مارکہ حق میں زخمی جوانوں اور شہریوں کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعظم نے زخمی جوانوں کی مارکہ حق کے دوران بے مثال بہادری، عزم اور فرض شناسی کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جس طرح فوج پاکستان اور پوری قوم نے یہ جنگ لڑی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ عوام کی ثابت قدمی ملک کی عسکری تاریخ کا ایک فیصلہ کن باب بن چکی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے آرمی چیف کے ہمراہ اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف نے شہید کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ وزیر اعظم نے مارکہ حق کے دوران عثمان یوسف شہید کے عزم اور فرض شناسی کو سراہا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے یوم تشکر کے موقع پر پاکستان رینجرز پنجاب ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ DG رینجرز پنجاب میجر جنرل محمد عاطف بن اکرم نے وزیر داخلہ کا استقبال کیا۔ محسن نقوی نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ شہداء کی بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کی، ان کے حوصلے کو سراہا اور ان کے مسائل بھی سنے۔ موقع پر ہی متعلقہ حکام کو مسائل کے فوری حل کی ہدایت جاری کی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ شہداء ہمارے ماتھے کا جومن ہے، ان کی قربانیوں کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر ملک بھر میں یوم تشکر۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر کی مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ یوم تشکر پر مزار اقبال پر پروقار تقریب۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ کی مزار اقبال پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ پاکستان نے بھارتی جوہریت کا بھرپور جواب دیا۔ مسلح افواج نے بھارت کے 6 طیارے مار گرائے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی نیوز بریفنگ بتایا کہ بھارت نے نہتے شہریوں پر حملے کیے۔ بھارت نے پورے خطے کو جنگ میں دھکیل دیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر مثبت پیش رفت ہے۔ سیز فائر کے لیے دوست ممالک کے کردار کو سراہتے ہیں۔ پاکستان نے ثابت کیا کہ عزت اور وقار پر سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ یوم تشکر کے موقع پر پاکستان کوسٹ گارڈ کا وطن کے محافظوں کو خراج تحسین۔ ترجمان کوسٹ گارڈ نے کہا آج کا دن بہادر سپاہیوں، جوانوں، افسروں اور شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ افواج پاکستان نے بھارتی جوہریت کا منہ توڑ جواب دے کر دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ قوم عہد کرتی ہے کہ وہ اپنے محافظوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہے گی۔ جو بھی ہماری سرزمین اور خود مختاری کی خلاف ورزی کرے گا، جواب بے رحمانہ ملے گا۔ مارکہ بنیان المرصوص میں بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے بعد کشمیر پر DG ISPR کا دو ٹوک موقف۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف بڑی فتح حاصل کی۔ بھارت سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جنگ کا محاذ کھڑا کر سکتا ہے تو یہ تباہی کا باعث ہوگا۔ بھارت مسئلے کو اندرونی معاملہ قرار دے کر کشمیریوں کو ہراساں کر رہا ہے۔ امریکہ جیسے ممالک جوہری خطرات کے پیش نظر بھارت کے عزائم کو بخوبی جان چکے ہیں۔
पाकिस्तान और भारत के DGMOs में अगली गुफ्तगू 18 मई को होगी। अफवाज को नॉर्मल सतह पर ले जाने के बाद मुज़ाकरात का मरहलावार शुरुआत की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की गुफ्तगू कहते हैं मुज़ाकरात में तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी। बातचीत के लिए न्यूट्रल मकाम का तयन होना है और जंग भारत ने शुरू की थी लेकिन हमने नहीं। अमरीका ने भी कन्फर्म किया कि पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा नहीं गिरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बैकडोर और फ्रंट डोर राब्तों की तरदीद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, PTI के बानी रहनुमा कभी भी किसी खुफिया माहिदे या मुफाहमत पर आमादा नहीं होंगे। उनकी अहलिया इस वक्त जेल में है, ऐसे में किसी भी किस्म की डील का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बहुत हो चुका, मुल्क को मजीद कशीदगी का मुतहमिल नहीं होना चाहिए। वक्त आ गया कि मामलात को संजीदगी से सुलझाया जाए। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने भारत के तकब्बुर को खाक में मिला दिया और कौम को उन पर फख्र है। इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। तरमीमी बिल वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने ईवान में पेश किया, जिसे कौमी असम्बली ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। अपोजिशन ने बिल की मुखालफत की। कौमी असम्बली ने फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। इंसदाद अखराक महसूलात तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर। वजीर कानून आजम नजीर तारल का सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल समेत दीगर बिल भी मंजूर किए गए हैं। मुल्तान गैरिजन में यौम तशक्कुर पर यादगार शोहदा पर शानदार तकरीब का इनेकाद। कमांडर सदरन कमांड और 2 कोर लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज हिलाल इम्तियाज मिलिट्री प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वतन अजीज पर जान निछावर करने वाले शोहदा की दर्जात की बुलंदी और मुल्क व कौम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी की खुशी में बहावलपुर गैरिजन में यौम तशक्कुर के हवाले से पुरवकार तकारीब का इनेकाद। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकील हिलाल इम्तियाज मिलिट्री ने परचम कुशा की तकरीब और यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा की बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा खानी की। पाक फौज चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी की खुशी में लाहौर गैरिजन में यौम तशक्कुर के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कमांडर लाहौर कोर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद फयाज हुसैन शाह ने परचम कुशाई की और यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। कोर कमांडर लाहौर ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, शोहदा की बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा खानी की। पंजाब रेंजर्स के खुसूसी दस्ते रेंजर्स रेड ने सलामी पेश की और बेहतरीन ड्रिल का मुजाहरा पेश किया। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में यौम तशक्कुर की मुनासबत से परचम कुशाई की शानदार तकरीब का इनेकाद। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब ने अफवाज की पेशावराना सलाहियतों और कौम के जज्बे को सराहा। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अज़मा कुरैशी ने परचम कुशाई की तकरीब का आगाज किया। तकरीब से खिताब में कहा, पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान की तारीखी फतह पर शुक्रगुजार है। तकरीब पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे से गूंजती रही। गुजरावाला गैरिजन में यौम तशक्कुर के हवाले से शानदार तकरीब। कोर कमांडर गुजरावाला लेफ्टिनेंट जनरल सैयद इमदाद हुसैन शाह ने परचम कुशाई की और यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा की बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा खानी की। सिंध रेजिमेंट के खुसूसी दस्ते ने सलामी पेश की और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में यौम तशक्कुर पुरवकार तकरीबात का इनेकाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वज़रा के हमरा परचम कुशाई करके तकरीबात का आगाज किया। तकरीब में वज़रा, मुशीरान, मुअव्वनीन खुसूसी और आला सरकारी अफसरान की शिरकत। पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कौमी तराना बजाया गया। सूबे भर की मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क कौम की सलामती और अमन के लिए खुसूसी दुआएं। हमारे जवानों ने भारतीय जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। कौम को अपने सपूतों पर फख्र है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, वतन की इज्जत पर कोई समझौता नहीं होगा। कौम दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनी हुई है। मादरे वतन का दिफा हर पाकिस्तानी का अव्वलीन फरीजा है। मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातेह खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि पाक अफवाज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। पाक अफवाज की अजीम फतह पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमने भारत को दिन की रोशनी में मुंह तोड़ जवाब दिया। कौम पाक अफवाज के साथ हर मुश्किल में खड़ी है। पाकिस्तान अमन का दाई है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर करारदाद मुत्तफिका तौर पर सेनेट से मंजूर। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने करारदाद पेश की। मतन के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। मसला कश्मीर मुज़ाकरात से हल किया जाए। करारदाद में आलमी बरादरी से कश्मीर पर फ़ाल सिफारतकारी जारी रखने की भी अपील। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पर आने वाली नस्लें भी फख्र करेंगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का यौम तशक्कुर पर खुसूसी पैगाम। कहा, आज अपने अजीम वतन की अफवाज की बेमिसाल फतह और बहादुरी का जश्न मना रहे हैं। पाक फौज ने अपने जुर्रतमंदाना इक़दाम से दुनिया पर वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मगर बाइज़्ज़त और खुद मुख्तार रियासत है। अगर पाकिस्तान की सालमियत पर आँच आई तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और मजीद फौलाद से जवाब देने के काबिल हैं। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी यौम तशक्कुर पर बहादुर अफवाज को खराज तहसीन पेश। पुलिस लाइन सियालकोट में डीपीओ फैसल शहजाद की सरबराही में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। डीपीओ फैसल शहजाद, मेंबर असम्बली मंशाउल्लाह भट्ट और चौधरी फैसल अकरम ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। अफवाज पाकिस्तान और पुलिस के शहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारीखी इक़दाम बरामदात और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए दरामदी महसूलात नुमाया कमी का फैसला आया। इज़ाफ़ी कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी अगले 4 से 5 साल में मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कस्टम्स ड्यूटी को ज़्यादा से ज़्यादा 15% तक महदूद करने के हक़ में फैसला। CSS इम्तिहानात में उम्र की हद 5 साल बढ़ाने की करारदाद मंजूर। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन असम्बली नौशीन इफ्तिखार ने कौमी असम्बली में पेश की। करारदाद में मुतालबा किया गया कि किसी भी उम्मीदवार को 5 मरतबा मुकाबले के इम्तिहानात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। CSS इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद 30 की बजाय 35 साल की जाए। भारत ने पहलगाम को जवाब बनाकर 2000 से जायद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया। मकबूजा कश्मीर में हालिया बरसों में हजारों नामालूम और बेशनाख्त खबरें सामने आई। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती कौंसिल में ब्रीफिंग। कहा, भारतीय काबिज अफवाज लोगों को पहले अगवा करती फिर उन्हें अजियतें दी जाती हैं। बगैर किसी कानूनी अमल के मौत के घाट उतार दिया जाता है। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 252 रुपए 63 पैसे फी बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत में फी लीटर 2 रुपए की कमी। नई कीमत 254 रुपए 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 4 रुपए 88 पैसे सस्ता। नई कीमत 150 रुपए 65 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 5 रुपए 4 पैसे कमी के बाद 164 रुपए 65 पैसे का हो गया। पाकिस्तान की हिमायत पर भारत होश खो बैठा। भारत ने तुर्क कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया की सिक्योरिटी क्लियरेंस मंसूख कर दी। भारतीय वजारत शहरी हवाबाजी के मुताबिक फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया जब भारत में लोग तुर्की और आज़रबाईजान की सैर का प्रोग्राम मंसूख कर रहे हैं। इन ममालिक ने हालिया पाक भारत तनाज़े में पाकिस्तान की हिमायत की थी।